On Founders Day, the son of our visionary founder Mr. Umar Ismail Khan shared a heartfelt tribute to his father's journey. He spoke of the relentless struggle to build the Al-Amin movement from the ground up. A mission born not of ambition, but of compassion, for the community and the downtrodden. His father sacrificed comfort, time, and ultimately his life to uplift others. These were not ordinary sacrifices, they were acts of generational service. Today, we are not just remembering a legacy, we are inheriting a responsibility. To carry forward his vision with courage, conviction, and unwavering commitment. Let us honor his life not only in words, but in action, by continuing the movement he began. Respected dignitaries on the dais, Muhammad Nurul Islam Media Sahib, Zakaria Hashim Riyasek Sahib, Vice Chairman Ziauddin Sahib, Zubair Ahmad Sahib, Joint Secretaries Afzal and Ali Bhai, and all media DC members, and all Al-Amin family that is present. What is the significance of Founders Day? Why do we celebrate Founders Day every year? Why do you all have to come, travel for so far, brave the weather? Because we have to remember that this institution didn't happen by accident. It was a lot of hard work and sacrifice. Every moment of my father's life, coming all the way from Tishnapalli, coming to Bangalore, being a medical doctor with the hope that we can start a big hospital, etc. But sacrificing everything so that we can assemble here today like this. Poor students have a stand to get education. Scholarship committees are formed. The community gets inspired towards education. Now after 60 years, people say the only way the community can grow is through education. But that vision my father had 60 years ago when he went and stepped in the beds of Kolar on the ground in Kolar. He used to go and sleep and to where the school was built. In Bijapur, he used to stay in a small hut and eat what the labor had to eat when he was studying in the medical college. He used to drive very ordinary cars and eat very ordinary food when he had to reach remote places. I remember he used to go and read Fajr Namaz in Ramnagar when Haji Ravi Sharif said and himself. Imagine at what time they had to leave home if they had to read Fajr in Ramnagar so that also engineering college would start. Lots of sacrifices have gone to build this institution, which is unbelievable. As our guest here was telling about his family, what kind of problems he had, how he had to take money from his wife, etc. This is with all social workers. This is not realistic to him. Every social worker who has to build, has to give his time, his money, sacrifice, then these institutions come up. So today when we are here to celebrate Founders Day, as we celebrate Independence Day, why do we celebrate Independence Day? To know how our leaders have sacrificed for the independence of the country. How the people have sacrificed, what is the Constitution of India? That is why we celebrate Republic Day. Why do we celebrate Rajyotsava Day? So that the formation of Karnataka is remembered and people value it. This is why we celebrate Founders Day, that Al-Amin family should understand that Al-Amin was not built easily, it was a lot of sacrifice and hard work. We all have to appreciate and work hard for the movement to grow, and any kind of sacrifice is required from your side, you should also be able to give it. Don't complain and say, management didn't give us this, we didn't get this, somebody else is getting something else. No. Nobody has thought that way when they build this institution. They have sacrificed and built. When it's your turn for a bit of sacrifice, a bit of hard work, please don't complain, please be part of the family, understand that this institution has come on sacrifice, a bit of sacrifice also, that's expected from you. What were the qualities my father had? Immense bravery, never got scared of anybody, always courageous, any kind of situation, and immense faith in God. Any problem came, he knew that there is a God behind to solve it. He continued. Any doubt, he used to say Bismillah and take a decision. Once the decision was taken, no looking back. He went on forward, and this is how courage and bravery, one of his qualities. Also, thankfulness to God, shukr guzari. Always in his life, he never complained. Whatever he got, what to eat, he wore, he ate, whatever he got to wear, he had to wear those clothes. Whichever vehicle he had to travel, he traveled. Any kind of difficulties, any people cheated him, any people did anything bad, no complaints. He said, this is God's will.
Because God wills, maybe there's something good in it. This is how he went on. Recently, when Dr. Taha Mateen was speaking about the last days, he was saying, when some patients come to the hospital, the doctors used to ask him, what is the problem? Then they say, Dr. साहब, मेरे पाँव में दर्द है, हाथ में भी दर्द है, इधर में दर्द है, उधर में दर्द है, इतने परेशानियां हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर बोलता है, आखिर क्या वजह से आए वो तो बोलो। फिर वो बोलते बीमारी क्या है। ये जब हमारे वाले साहब का इंतकाल हो रहा तो जब भी जाके पूछे, डॉक्टर साहब कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अच्छा हूँ। मरने से 2 दिन पहले बिल्कुल अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेरी नहीं डॉक्टर, आपकी बीमारी ना, आपकी हॉस्पिटल बैठी है, वो सांस की ज्यादा तकलीफ है, कोविड है, दूसरा सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मरते वक्त भी कभी भी शिकायत नहीं, हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजारी। ये जो है हमें सब सीखना, छोटे छोटे चीजों से परेशान हो जाती और अल्लाह के दिलों में अल्लाह सुभान ही, अल्लाह में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी चीज हमें कंप्लेंट करने का नहीं, हमेशा शुक्रगुजार करना। ये शुक्रगुजार नेमत जो है हमारे वालिद साहब से सीखो। आप लोग भी कभी कोई तकलीफ है, हमेशा शुक्र, अल्लाह का शुक्र करते रहो। जिस तरीके से अल्लाह शुक्र करेंगे, अल्लाह और नेमतें बढ़ाएंगे। अगर कंप्लेन करेंगे तो अज़ाब शदीद है, वो कुरान की आयत आप सबको मालूम है। रिस्पेक्ट फॉर पुअर, कभी भी आप देखेंगे हमारे जो भी गरीब स्टाफ था, जो वॉचमैन थे, स्वीपर थे, कभी भी उनसे मोहब्बत से मिलना, मोहब्बत से बात करना, उनके फैमिली के बारे में पूछना, उनका नाम याद रखना, ये वालिद साहब की खूबी थी। हमेशा जो है गरीब की इज्जत करते थे, मोहब्बत से बात करते थे। हार्ड वर्क, सिंप्लिसिटी, फेथ इन गॉड। ऑल्सो कीप गुड कंपनी, कभी भी अल्लाह की एक हिदायत थी, अच्छे लोगों से उठना बैठना रखो, अच्छे लोगों से उठना बैठना रखो। ये इस्लाम का सबसे अच्छा तरीका है। कभी भी अब्बा की ये भी आदत थी कि जब उलेमा कराम को मिलते थे, जो गले से गले लगा लेते ताकि उनका सीना सीने से सीना लगे। उलेमा कराम के साथ ये था, दूसरों से मुसाफा करते। उलेमा कराम के अब्बा की ख्वाहिश थी कि ये लोग अच्छे हैं, उनके सीने में फराम है, हमेशा जो है लपट के मिलते थे। तो हमेशा अच्छी कंपनी रखने की जरूरत है हमें। हम सब लोग भी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना ये रखना है, हम अच्छी सोहबत रखना ये जरूरी है। आज जो है वहाँ जैसा नूर इस्लाम बता रहे थे, अब्बा का बर्थडे 6 सितंबर 1935। आज तकरीबन 90 ईयर्स के होते, अगर जिंदा होते तो 90th बर्थडे है अब्बा का। रिसेंटली एक सेइंग मैं पढ़ रहा था, वही ऐसे है, when God wants to show off, he creates a human being like डॉक्टर मुमताज अहमद खान। अल्लाह को शो ऑफ करना है तो वैसे आदमी बनाता है जो खूबसूरत है, हिम्मत वाला है, नेक है, जिंदा है। मोहम्मद नूरुल इस्लाम जिया साहब, वालिद साहब इनके बारे में कभी भी ऊंची राय देते थे कि जो है अलमीन नाम, अलमीन एजुकेशन सोसाइटी इसलिए राम कृष्णा मिशन से मिशन लिए और मिला के अलमीन मिशन नाम रखे और ये इदारा चल रहा है। हमेशा वालिद साहब इनकी बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे थे। और बंगाल ऐसी जगह है जहाँ गुर्बत बहुत है। कर्नाटक में हम शायद इतनी गुर्बत नहीं देखे, जैसे बंगाल में गुर्बत है, बहुत ज्यादा गरीब है। तकरीबन 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं और 10 करोड़ पॉपुलेशन, ज्यादा गुर्बत है। अब ऐसे इलाकों में काम करना, 5,500 बच्चों को डॉक्टर बनाना, एक मेडिकल कॉलेज जैसा है, मगर एक मेडिकल कॉलेज हम चलाएं, एक इंटेक 100-125 होता है, कितने साल लगेंगे 5,000 बच्चों को मेडिकल कॉलेज से पास करने के लिए। ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल मेडिकल कॉलेज चलाने से ज्यादा काम कर रहे हैं माशाल्लाह वेस्ट बंगाल में। और 5,500 नीट स्टूडेंट्स, 5,000 प्लस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और दूसरे फील्ड में भी, और ज़कात वगैरह देना, बच्चों को हेल्प करना, मेडिकल जो सीट लेता है उसको स्पॉन्सर करना, ये बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी ऑनर्ड योर प्रेजेंस। ज़किया हाशिम साहब मेमन कम्युनिटी के बहुत मशहूर आदमी हैं, मेमन जमात के सदर रहे हैं काफी दिन, बहुत रिस्पेक्टेड, उनके कम्युनिटी में ज्यादा रिस्पेक्ट है, हर जगह ज्यादा रिस्पेक्ट है। हमारे तकरीबन 25 साल से मैं तो देख रहा हूँ अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी या स्कॉलरशिप ट्रस्ट में काम कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ इनसे सीखने का मिला। एक तो मेटिकुलस हैं, कौन सा भी जॉब करते हैं, देखिए फॉर्म चेक करते हैं, अपना टाइम देते हैं और जो है अच्छी हैंड राइटिंग अप्रिशिएट करते हैं। कोई बच्चा अच्छा खत लिखता है तो उसे अप्रिशिएट करते हैं और कहीं ज्यादा पैसा देना है तो वो भी करते हैं। किसी ने अपना गोल्ड ज्वेलरी बैंक में रख के पॉन करके पैसा लिया है स्टूडेंट की फीस, तो वो बैंक का लोन चुका के ज्वेलरी निकाल के गरीब को देते हैं। ऐसे नेक आदमी, बहुत नेक आदमी है और नमाज के बहुत पाबंद है। कोई भी काम हो, अज़ान हो गई तो पेन रख के नमाज के लिए खड़े जाते हैं। ये हम इनसे बहुत ज्यादा सीखे हैं
जब आलमीन के बुरा वक्त आईफी की वजह से, तो वालिद साहब की बहुत ज्यादा खिदमत करे, आगे बढ़ के वाईफी का प्रॉब्लम सॉल्व करने, निजाम और 2 लोग बहुत रात जग इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया। आज हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और इनकी ये भी इस साल एक नियत की है कि आलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट से 100 मेडिकल स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देंगे। तकरीबन 50 या 60 दे दिए हैं, इनकी नियत है 100 मेडिकल स्टूडेंट्स को आलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट से पढ़ाएं। हमारी जुबैर अनवर साहब सेक्रेटरी माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन आलमीन का जो है आज बहुत अच्छा है। 4-5 साल से जो हम टेक ओवर करे थे, हमारे लिए बहुत खराब थी हमारी हालत। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पोजीशन में है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है। हर इदारे में कुछ इधर हेड ऑफिस से पैसा जा रहा है। हर स्कूल में समझो कोलार, श्रीनिवासपुर, चन्नपटना, किपटूर, अरसिकरे और सकलेशपुर, हासन, हर स्कूल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ये हमारे बिदर गुलबर्गा में सर, ये बिदर साहब, हमारे जुबैर साहब यहाँ से कुछ ना कुछ रकम भेज रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे दूसरे जो मेरे साथी अली भाई, अफजल हमेशा यहाँ साथ रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। अब बिलाल भी साथ सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत काम हाथ में आसानी हो गई काम करने के लिए। और हमारे दूसरे जितने भी ईसी मेंबर्स हैं, सब जो है सबके सपोर्ट की वजह से हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल जो हैं, अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छी अल्लाह की मदद है कि जितने भी हमारे जो कैंपस में जो प्रिंसिपल्स हैं 2 कैंपस के, बड़े सपोर्टिव हैं, एक फ्रेंडली है, स्ट्रिक्ट है, रिजल्ट्स अच्छे ला रहे हैं, लेकिन अच्छा माहौल बना है, एक हेल्पफुल माहौल है, कोऑपरेटिंग माहौल है। डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, हमारे नासिर साहब, डॉक्टर अनुराधा, नए प्रिंसिपल डॉक्टर अमजद पाशा डिग्री कॉलेज में आए हैं, डॉक्टर सुधा, नवाब पाशा और फराज, और लॉ कॉलेज के हमारे वसीम साहब, सब ये जो है 8 प्रिंसिपल हैं 8 इंस्टीट्यूशंस के, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ कैंपस में बहुत अच्छा माहौल बना है। एक माहौल ऐसा है कि एजुकेशन में भी एक्सेल करो, स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करो, और कल्चरल एक्टिविटीज में भी अच्छा करो। तो ये एक अच्छा माहौल बना है। कैंपस में आने बच्चों को खुशी होना, बच्चे कैंपस में रोक नहीं आना, खुशी से आना, और खुशी का माहौल हो, जैसे दूसरे बड़े कैंपसेस में माहौल हो, वैसा माहौल हमारे प्रिंसिपल्स ने बना के रखा है। और हमारे लेक्चरर्स भी उनका साथ देते हैं, जितने भी लेक्चरर्स हैं वो सब हमारे प्रिंसिपल सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट स्टाफ जो भी यहाँ देखें आप, सपोर्ट स्टाफ जितना है, ये सब लोग हर फंक्शन में, हर जरूरत में आगे पीछे हमारे रहने से काम हमारा आसान होता है। आज के अवार्डीज जितने भी हैं माशाल्लाह, आप सब लोग जो भी काम कर रहे हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन सबको अवार्ड नहीं दे सकते, सबकी बारी आएगी। आज जितने भी लोग अवार्ड लिए हैं उन सबका जो है मैं बहुत दिल से मुबारकबादी देता हूं, और आप ऐसे ही काम करते रहे, अपने कॉलेज स्कूल को सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह आगे फिर मिलेंगे। तो इसी बात से मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। वाफिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।